What's working and what's not in lead generation for 2025? अगर अभी भी आप ट्रेडिशनल फनल्स या जेनेरिक एड्स यूज कर रहे हो, तो I want to tell you something. It's time to keep yourself updated because 2025 में लीड जनरेशन की अप्रोच जो है वो टोटली चेंज हो गई है. वो कैसे? How come? Let's talk about कि पाइपलाइन को क्या चीजें आज के टाइम में जेन्युइनली ग्रो कर रही हैं. मैं हूं मनिंदर कौर एंड आई हेल्प बिजनेसेस टू फिक्स देयर लीड जनरेशन स्ट्रेटजी. चलो अब कॉफी पकड़ो, नोट्स बनाओ एंड लिसन क्लोजली कि 2025 की रियल विनिंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं एंड हाउ यू कैन टर्न योर एफर्ट्स इनटू रियल रिजल्ट्स. What's working right now? Number 1, hyper personalization. That is equal to conversion goldmine. That means don't just follow the trend of mass email blasting. But ऐसा क्यों? क्योंकि आज के prospects की expectation जो है कि उनका every message उनके लिए customized हो. That means they want to follow the personalized approach. So what does it mean? That means you have full freedom to use buyer intent data and perform advanced segmentation by using AI tools. तो इसका direct impact किस पे है? It's obvious on outreach. Now you can do your outreach in a correct way. Netflix और HubSpot जैसे brands, they don't just send newsletters. Instead, Netflix for You जैसे AI personalized recommendations भेजते हैं. As per recent study, 94% marketers मानते हैं कि personalized outreach से conversions boost होते हैं. तो अगर आप customer by customer personalization नहीं कर रहे, तो जनाब, you are simply just wasting your money. Let's take an example. Hi, buy my product. Mass message भेजने की बजाय आप लिख रहे हो, Hi Vaishali, I can see that you are running your bakery shop. क्या कभी आपने सोचा है कि सोशल मीडिया पे आपके केक्स को कैसे मार्केट करूं? So that's the personalized touch. Number 2, AI is the lead machine. AI अब आपके इनबॉक्स, लैंडिंग पेज सब जगह है. Salesforce, Einstein और HubSpot predictive scoring जैसे टूल्स इंस्टेंटली आपको बता देते हैं कि which of your lead is active to buy your product or service. अब सिर्फ Google, Amazon ही नहीं, all types of businesses are using AI to understand the interest of their audiences. So in simple words, AI help कर रहा है कस्टमर की जर्नी और उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड एंड ट्रैक करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारी MNCs की वेबसाइट पे 24/7 चैटबॉट आंसर्स देता है डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस के. पर जब किसी को रियल डिटेल चाहिए तो उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली लीड को उनके रिप्रेजेंटेटिव को फॉरवर्ड कर देता है एंड वहां से होती है कन्वर्जन. तो क्या समझे? फॉलो दिस ट्रेंड एंड डोंट मिस एनी लीड. नंबर 3, इंटरैक्टिव कंटेंट एंड वीडियो. लोग उसी प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहते हैं जहां वो कंफर्टेबल होते हैं. इट कैन बी लिंक्डइन DMs, इंस्टाग्राम मैसेजेस या व्हाट्सएप. कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट एंड कंफर्ट. बट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट क्या है? टेल मी. Short video content or long video content? Obviously short form content, quick chat, stories. So don't create long form content until and unless you are a content creator. For example, एक local spa customer ने Instagram DM में chatbot usage integrate किया. But क्यों किया? For instant communication. तो इसने phone call को respond करना या form fill करना कोई टेंशन ही नहीं. Just because of this small change, अब customer करता क्या है? वो curious होकर appointment book कर लेगा. So let me tell you, quizzes, assessments and short form videos, they are performing really very well. But simultaneously आपको एक engagement plan भी implement करना पड़ेगा. तो करना क्या है? Real time webinar या एक reel डालो जो दिमाग हिला दे. So as per research, video campaign से 300% तक ज्यादा रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो मतलब बहुत ही सिंपल है. No video, no party. Number 4, multi-channel outreach means diversify your approach. Don't connect with your targeted audience just on a single platform. 2025 में top B2B brands अपने prospects तक अलग-अलग channels के थ्रू उनको reach out कर रहे हैं. वो लोग targeted email send कर रहे हैं leads को nurture करने के लिए. LinkedIn, Instagram या Facebook पर regularly they are posting content for what? Just to strengthen their brand presence. और relevant online communities या industry groups में
ही actively they are participating. So in this video, I would like to share an example of one of my client. तो एक क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को टारगेट किया, प्लांट मैनेजर्स को पर्सनलाइज्ड लिंक्डइन मैसेजेस भेजे, हर वीक वेबिनार्स किए, डिजिटाइजिंग ऑपरेशंस पे फोकस किया, ईमेल्स के साथ साथ कोरा, रेडिट जैसे फोरम्स में लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। तो बेसिकली बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज we helped that client to enhance his digital presence. जहां पर भी ऑडियंस थी, इस अप्रोच ने ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प की और मल्टीपल कन्वर्जन चांसेस के थ्रू ROI भी बेटर हो गया। नंबर 5, स्मार्ट ऑटोमेशन बट विद अ ह्यूमन टच। ईमेल ड्रिप कैंपेन्स, ऑटो रिस्पॉन्डर्स और चैटबॉट्स जैसे ऑटोमेशन टूल्स लीड जनरेशन को इजी और एफिशिएंट बनाते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर्सनल टच मत खोना एट एनी कॉस्ट। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज नोबडी लाइक्स टू टॉक टू रोबोट। सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स ऑटोमेशन के साथ साथ जेन्युइन एंड फ्रेंडली कम्युनिकेशन भी रखते हैं। जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑटोमेटेड वेलकम ईमेल भेजती है जब भी कोई उनके वेबसाइट से फ्री ई बुक डाउनलोड करे, लेकिन उसके बाद टीम का मेंबर पर्सनली मैसेज करके ऑफर करता है फ्री कंसल्टेशन। इसी तरह सास कंपनी अपनी वेबसाइट पर चैटबॉट लगाती हैं जो 24/7 FAQs का आंसर देता रहता है, पर जैसे ही विजिटर बोले आई वांट टू टॉक टू योर रिप्रेजेंटेटिव, उसी टाइम सेल्स रेप लाइव आ जाएगा। रूटीन काम ऑटोमेशन संभाल लेता है, पर असली ट्रस्ट और वैल्यू कब बनेगी? जब होगी रियल ह्यूमन इंटरेक्शन। तो इसमें पता है क्या होगा? इससे लीड्स को फील होगा कि वो सिर्फ एक प्रोसेस का पार्ट नहीं, इन फैक्ट दे आर गेटिंग अटेंशन, दे आर गेटिंग इंपॉर्टेंस। व्हाट्स नॉट वर्किंग एनीमोर? नंबर 1, चेजिंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। बड़ी लीड लिस्ट या आप बोल सकते हो ह्यूज पाइपलाइन का बेनिफिट ही क्या अगर लीड्स क्लोज ही ना हो। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है पुट योर फोकस ऑन क्वालिटी लीड्स। अब सिर्फ उन क्वालिटी लीड्स पे ध्यान दो which are best for ideal customer profile. Do you know there are so many companies who collect 10,000 leads per month, but if we can keep a check, उसमें से only 50 are getting converted. अगर हम टारगेटिंग फिक्स करते हैं तो इसकी 50% लीड्स में you will get thrice times conversions. सही सुना आपने, thrice times conversions. अगर नहीं सुना तो जनाब पैसा भी आपका, नुकसान भी आपका, हम तो बस सलाह कर रहे हैं। नंबर 2, जेनेरिक ईमेल एंड सोशल स्पैम। आपको पता है अब सोशल मीडिया यूजर सेम ईमेल या फेसबुक एड्स देख के ना आराम से इग्नोर कर देगा। उसका रीजन ये है कि लोग चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। नहीं समझे तो या तो आप इग्नोर हो जाओगे या फिर ब्लॉक कर दिए जाओगे। इट्स योर चॉइस। इग्नोर होना है, ब्लॉक होना है और डिजिटली विजिबल होना है विद पर्सनलाइज्ड ईमेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, हर प्रॉस्पेक्ट को लिंक्डइन पे क्लोजली ऑब्जर्व करो, पर्सनलाइज्ड ईमेल या DM भेजो लाइक हाय राज, सुना है आपने अभी नई मोबाइल ऐप लॉन्च की, क्या आप अपनी ऐप डाउनलोड्स को डबल करना चाहते हो? ट्रस्ट मी, हमने दूसरी कंपनीज को 3 मंथ्स में 200% तक ग्रो करवाया। You can check our website as well, where we claim get 2x more leads in just 90 days. ये पर्सनल टच से ही स्टार्ट होगा आपका कन्वर्जन। नंबर 3, वन चैनल रिलायंस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर कोल्ड ईमेलिंग या लिंक्डइन पे यू आर वर्किंग यू कैन इजीली ग्रो? नो, यू कांट। डोंट लिव इन असम्पशंस। अभी जो टाइम है वो है ऑमनी चैनल अप्रोच का। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज such as SEO, organic social content, paid ads, webinars, influencer collabs। तो जितने टच पॉइंट्स हैं उतने ज्यादा चांसेस हैं कि कोई आपको याद रखे। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। What do you think कि B2B ब्रांड Zoho लीड्स कैसे लेके आता है? वो लिंक्डइन पर कैंपेन चलाता है, हर मंथ फ्री वेबिनार्स होस्ट करता है, SEO बेस्ड ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करता है और YouTube पे टेक इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करता है। हो सकता है कोई पहले Zoho का ब्लॉग पढ़े, फिर लिंक्डइन पर उनका ऐड देखे, वेबिनार के इनवाइट मिले और इन्फ्लुएंसर के वीडियो में टेस्टिमोनियल्स भी सुन ले और एंड में डेमो रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करे। तो इन वन शॉट हर चैनल अपना रोल प्ले करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और ब्रांड की
की रीच मैक्सिमाइज करता है। नंबर 4, स्किपिंग फॉलोअप्स। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स डील्स को क्लोज करने से पहले एटलीस्ट 5 टाइम्स मींस 5 बार उनके टच पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ एक फॉलोअप के बाद रुक जाते हो तो आप कन्वर्जन की 80% अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है टू सेट अप स्ट्रक्चर्ड नर्चरिंग कैंपेन्स और रिमाइंडर्स ऑटोमेट करो। लेकिन देयर इज ओनली वन थिंग टू रिमेंबर, गेस करो व्हाट? पर्सनलाइज्ड फॉलोअप। लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। एक मार्केटिंग एजेंसी पहले प्रॉस्पेक्ट को ईमेल भेजेगी, फिर लिंक्डइन पे कनेक्ट करेगी, वेबिनार का इनवाइट देगी, व्हाट्सएप पे केस स्टडी भेजेगी और एट द एंड दे विल शेयर कस्टमाइज्ड प्रपोजल। सेल्सफोर्स जैसे बिग ब्रांड्स व्हाट एग्जैक्टली दे डू? दे ऑटोमेट ड्रिप सीक्वेंसेस, लेकिन फाइनल कॉल उनका अकाउंट मैनेजर ही लेगा। वो क्यों? ताकि प्रॉस्पेक्ट को फील हो कि उनकी इंपॉर्टेंस है।